वालेकुम सलाम बेटा। एमईसी बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। बैट-सावर्स लॉ हो गया ना अपना? I told you that magnetic can be calculated by two laws beta. One is about your Biot-Savart's law, another one is by your Ampere's circuital law. So Biot-Savart's law तो हम लोग ने खत्म कर दिया था, और let us try to go for Ampere's circuital law. उसके बाद इसके application चले जाते हैं. So keep the next heading Ampere's circuital law. Ampere's circuital law. Ampere's circuital law. It is, अगर लॉन्ग टर्म के बच्चों को आइडिया होना तो this is exactly similar to like Gauss law beta. Just like a Gauss law, it is an alternate form of your Coulomb's law. In the same way, circuital law is an alternate form for your Biot-Savart's law. So I can say that Ampere's circuital law is an alternative form. It is an alternative form of Biot-Savart's law. Biot-Savart's law. Okay. So Ampere ने क्या बोला? So Ampere told that. Am I audible better for everyone? Yes, sir. Yes, sir. So what is an Ampere's law beta circuital law? It is an alternate form of your Biot-Savart's law. So Ampere told that right now, Ampere's circuital law gives actually the relation between the line integral of your magnetic field and as well as of your total current. अगर कोई सी को याद रहे तो, so I can say right now, Ampere's circuital law definition देखो बेटा, Ampere's circuital law gives a relationship. It gives a relationship between magnetic field, or you can say that between the line integral of magnetic field, line integral of your magnetic field B bar, and the total current and the total current capital I, total current I, which produces magnetic field, So what is an Ampere circuital law? एक बार देख लो बेटा. Ampere circuital law gives the relationship between what बेटा? Line integral of B bar. अब इसको लिखो right now statement. Line integral of your B bar around any closed surface is equal to your mu naught times of the total current which is being passing through the closed circuit part. इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं. Line integral of your B bar into your length, that is nothing but of your DL, is equals to mu naught into your total current I, which is enclosed. Yani we need to take only the current which is been enclosed. So line integral, ऐसा integral का symbol डाल के अगर ऐसा zero मार दे, so this is known as of a sine integral of your closed surface. This one is nothing but of your closed surface के लिए ही applicable. This one is for your closed surface. Line integral of your any closed surface B bar into DL is equals to your mu naught into your current enclosed. Mu naught into your current enclosed. So this is your basic Ampere circuital law. Is it clear? यहाँ पर mu naught क्या है? किसी को मालूम है? Long term के बच्चों को तो आइडिया होना चाहिए basically. So mu naught is known as of your permeability. Mu naught is known as of your permeability. What do you mean by permeability, beta?
permeability is nothing but something which allows the magnetic lines of forces to pass through the given area. It is the quantity, it is the quantity which will allow b bar to pass through a closed surface, through a closed surface. ठीक है, मान के चलो ऐसा एक कॉइल है मेरे पास. सो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जा रहे हैं, बेसिकली ये जो इसके अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, दिस परमिएबिलिटी. So permeability is the property of this material which will allow the magnetic lines of the forces to pass through that one, is called as of your permeability, isn't it? जैसे अपन अपने घर में जाने के लिए अपने पास एक कंडीशन होना है, ऐसा नहीं कि हम किसी के भी घर में चले जाएं, हम लोग अपन के घर में ही जा सकते हैं, and we can go anywhere and we can go at any angle. So that region or that constant in which you can move it very easily without any external conditions is called as of your permeability. अब ये क्या बोल रहा है, ये क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज सरफेस है. इस क्लोज सरफेस के अंदर जितने भी मैग्नेटिक फील्ड जा रहे हैं उसका कंडीशन क्या होना चाहिए, म्यू नॉट होना चाहिए. दिस इज योर म्यू नॉट. म्यू नॉट इज नथिंग बट क्वांटिटी व्हिच विल डिसाइड दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फोर्सेस विल पास थ्रू दैट गिवन closed circuit part of relation. I hope everyone is clear this one. So line integral of b bar into dl is equals to mu naught into your current enclosed. So this is actually the what do you call that one, Ampere's circuital law. और ये जो क्लोज सरफेस है बेटा, इसको हम लोग एम्पीरियन लूप भी बोलते हैं. दिस वन इज आल्सो कॉल्ड एज ऑफ योर एम्पीरियन लूप, यानी क्लोज्ड सरफेस को जो है ना, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स जा रहे हैं, इस क्लोज सरफेस को, इस रीजन को हम लोग एम्पीरियन लूप भी बोलेंगे. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. Everyone. So I hope everyone is clear with your Ampere circuital. बस इतना ही Ampere circuital, ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है. So Ampere circuital क्या है? It is an alternate form of your Biot-Savart's law. जितने भी फॉर्मूलेस आपको Biot-Savart's law में आए, वो पूरे फॉर्मूलेस हम लोग Ampere circuital law में भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा और इजी है बेसिकली. तो इसका डेफिनेशन क्या है? लाइन इंटीग्रल ऑफ योर b bar into dl is equals to mu naught into current enclosed, mu naught into your current enclosed. चलो इसका एप्लीकेशन कर लेते हैं, निकालते हैं कैसा निकालना है. मान के चलो फर्स्ट वन लिखो आप लोग, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग वायर. आंसर क्या है, किसी को पता है? लॉन्ग वायर मतलब क्या? इन्फिनिटी. Mu naught by 4 by 2 I by r. इन्फिनिटी. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग वायर मैंने Biot-Savart's law से निकाला था. Mu naught by 4 by 2 I by r. हाँ, म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई इंटू आर. वही फॉर्मूला अपने को एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ में भी आना. देखो अपने पास क्या ले रहे हैं हम लोग, वी आर टेकिंग दिस वन एज ऑफ योर वेरी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर. तो ये हो गया मेरे पास करंट कैरिंग वायर, और ये अप टू इंफिनिटी जा रहा. वेरी लॉन्ग मतलब कभी भी इंफिनिटी बेटा. वेरी लॉन्ग ड्यू टू लॉन्ग मतलब क्या, कभी भी इंफिनिटी. अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन. ऐसा. तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्शन कोई बता सकता है? मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा इनटू, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटसाइड. टेक योर राइट हैंड थंब, represents the direction of current. Curling of fingers represents the direction of magnetic field. So एक point P पे magnetic field will be inside. This will be equal to your B bar. And at this point, at a point of your Q, the magnetic field is your outward. So that is nothing but of your B. तो यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हो जाएगा B bar, और इसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पे हो जाएगा B bar. ठीक है. अब अपने को R पे चाहिए. मान के चलो R is at a distance of, this one is at a distance of your R. This one is at a distance of your R. और मैं एक छोटा सा वायर ले रहा हूं इसके अंदर. So this is the small part of your wire. और इसका लेंथ कितना हो जाएगा, स्मॉल पार्ट ऑफ लेंथ का DL. और इसमें करंट भी जा रहा है I. We know that I into DL क्या बोलते हैं बेटा? I into DL is known as of your current element. Is known as what? Current element. Is known as what? Current element. अब फॉर्मूला लगाओ, लाइन इंटीग्रल. यहाँ पर तो क्लोज सरफेस है कि नहीं है? ये क्लोज सरफेस है, तो वी कैन अप्लाई द एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ. सो व्हाट इज एन एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ बेटा? यहाँ पर देखो, बेसिकली लाइन इंटीग्रल ऑफ योर B bar into your DL is equals to म्यू नॉट इंटू करंट कितना इनक्लोज है यहाँ पर, I is the current enclosed. तो B कांस्टेंट है, B बाहर निकालो, that is line integral of your DL is equals to your म्यू नॉट into your I.
ये पूरा सर्कमफ्रेंस कितना है बेटा 2 पाई इंटू आर, तो ये हो गया 0 से लेके 2 पाई इंटू आर तक जाओगे, ये लेंथ यहाँ से स्टार्ट होके फिर यहाँ तक आया, तो टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट लेंथ इक्वल टू हाउ मच बेटा, टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट लेंथ will be equal 2 to how pi much? r. 2 pi into your r, and you already know that integral of dl is nothing but what beta? L. So L. this one is b bar. Substitute upper limit minus lower limit, so we'll get 2 pi into your r is equals to mu naught into your I. आया सभी को? Yes sir. तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड का Yes, फॉर्मूला sir. कितना बन गया? सो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया b bar is equals to mu naught into your I divided by 2 pi into your r. तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट एट सम पॉइंट r. सो मैग्नेटिक फील्ड कितना है? b is equals to mu naught into I divided by 2 pi into r, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर इनटू. क्लियर है सभी को? Yes sir. इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. Yes, sir. नेक्स्ट वन चले जाते हैं. मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड वन. मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field created by a long uniform current carrying cylindrical wire. Very important beta, so please try to concentrate on this one. So magnetic field, we are trying to calculate magnetic field created due to a long uniform current carrying cylindrical wire. मेरे पास एक cylindrical wire है, isn't it? You are having a cylindrical wire, ऐसा वाला देखो. तो ये हो गया cylindrical wire इस तरह से. तो ये पार्ट हम लोग कट कर दे रहे हैं, ये पार्ट भी हम लोग कट कर रहे हैं. तो ये हो गया एक सिलेंड्रिकल वायर यहाँ से यहाँ तक, और ये भी हो गया यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, ये इसका एक्सेस है बेटा, ये सेंटर है, तो ये हो गया इसका एक्सेस. एक्सेस इज पासिंग थ्रू द सेंटर. ओके, और इसका डिस्टेंस जो है ना, ये जो है हम लोग रेडियस ले रहे हैं, ये इसका रेडियस कैपिटल आर, और इसके अंदर पूरा मास है बेटा. इसके अंदर जो है ना पूरा मास है, दैट मींस ये पूरा मास है इसके अंदर. थोड़ा एडजस्ट हो जाओ. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वी आर हैविंग द मास थ्रू आउट द बॉडी लाइक दिस. ठीक है. Yes sir. तो अब यहाँ पर आप लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा नॉलेज यूज करना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो मैं बता देता हूँ क्या यूज होगा यहाँ पर. तो ये पॉइंट तो बाहर है, ये नहीं जा रहा. चलो ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? हम लोग क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय ए यूनिफॉर्म लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर. ये एक सिलेंड्रिकल वायर है, यानी जिसके अंदर मास है, जिसके अंदर मास है. तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसके अंदर. एक तो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, एक पॉइंट है आउटवर्ड, ठीक है, और एक पॉइंट है इनवर्ड, ए क्यू. ओके, और एक पॉइंट है यहाँ पर कहीं पर फोकस, ये अपनी फोकस एकेडमी. तो इस तीनों पॉइंट के पास अपने को फोकस एकेडमी में लाइटनिंग है सर फिलहाल, इसलिए पूरा डार्क कर दिया, इसीलिए पूरा डार्क कर दिया मैंने. नहीं सर, बोर्ड बनने कोई भी नहीं सुन रहा आपकी क्लास पे. जाने दो, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आई कांट डू एनीथिंग फॉर दैट. फोनों पे सुन रहे, बोर्ड पे नहीं सुन रहे. व्हाटएवर इट मे बी. ये हो गया आर, पॉइंट पी है, आउटर पॉइंट पे आर, और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक हो गया कैपिटल आर, और इसका पॉइंट यहाँ से यहाँ तक हो गया मान के चलो एक्स. ठीक है, ये एक्सेस से तीनों की भी दूरी लिख दिया मैंने. पी की दूरी कितनी है? आर है, और क्यू की दूरी कितनी है? कैपिटल आर है, और फोकस एकेडमी की दूरी कितनी है? एक्स. ठीक है, तो मुझे अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट पी. तो पॉइंट पी पे निकालना है तो क्या करूंगा मैं इसको? अभी इसको मैं क्या करूंगा? आई विल बी टेकिंग एन एम्पियरियन लूप, ये क्लोज लूप ले लिया मैंने. क्या बात कर रहे हो यार आप लोग?
आप लोग के बात ऐसे रिकॉर्डिंग में चले जाएंगे, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा ना तो आपकी पूरी कहानी बात होते रहती है, सभी लोग सुनते रहते। ठीक है, सो पॉइंट पी कहां पर है बेटा? आउटसाइड है। पॉइंट पी कहां पर है? आउटसाइड है। पॉइंट क्यू कहां है? सरफेस पे है। और पॉइंट फोकस एकेडमी कहां पर है? इनसाइड है। Inside. Inside. इन पॉइंट्स पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इन पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। इस सिलेंडर के अंदर पूरा जो करंट जा रहा है बेटा, दिस इज योर करंट आई। पूरा करंट ये पूरे सिलेंडर के वजह से पॉइंट पी पे करंट कितना हो जाएगा? आई होगा। अब अप्लाई द कंडीशन राइट नाउ, व्हाट आई कैन डू राइट नाउ। फर्स्ट कंडीशन नंबर ए, स्मॉल r is greater than capital R. A, point P is outside. Point P is outside. Point P is outside. Small r is greater than capital R. तो अब यहाँ पर अपने को वो छोटा सा कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए। तो हाउ डू यू कैलकुलेट द करंट बेटा? सो स्मॉल करंट, यहाँ पर सभी लोग लिखो बेटा, स्मॉल करंट आर कटेड करंट डिवाइडेड बाय टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल करंट। टोटल करंट मस्ट बी इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। सेंटर ऑफ मास में जैसे हम लोग को छोटा सा मास निकालना होता है डीएम, isn't it? So small current divided by your total current must be equal to small area divided by total area. Density, current density नहीं सर? अब यहाँ पर देखो पॉइंट पी पे करंट है, तो पॉइंट पी आउटसाइड है, तो करंट यहाँ पर मैं मान के चलो आई डैश ले रहा हूं, तो क्या आई डैश और आई सेम रहेंगे बेटा? टोटल करंट कितना हो जाएगा कोई बताओ? आई डैश विल बी इक्वल टू योर आई डैश विल बी इक्वल टू योर हाउ मच फॉर मी? I part deflection. क्यों? Because we are talking about the electric field at a point P outside. A point P outside is because of total current. तो इसमें मैंने मान के चला I dash है और ये I dash ये I के बराबर है, तो I dash is equals to your I dash is equals to your I. यानी current outside is equals to total current in the circuit. Now apply the Ampere circuit law. Ampere circuit law क्या बोल रहा? Line integral of your B bar into your DL is equals to your म्यू नॉट इंटू करंट इन दिस वन, दैट इज नथिंग बट आई डैश। तो इसमें तो बी बाहर है, बी बाहर निकालो। लाइन इंटीग्रल ऑफ योर डीएल लिमिट है 0 से लेके 2 पाई इंटू आर, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू करंट आई डैश कितना है बेटा? आई है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, लिमिट इसका 0 टू 2 पाई आर है, तो ये हो गया बी इंटीग्रल ऑफ डीएल इज नथिंग बट डीएल, सब्स्टिट्यूटिंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया 2 पाई इंटू स्मॉल आर, तो ये हो गया म्यू नॉट इंटू करंट आई। ये ऑलरेडी 2 साल पहले नीट में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, डायग्राम पे 2018 या 2019 में कुछ पूछा गया था। इस क्वेश्चन को ग्राफ के कंडीशन में पूछा गया हुआ था। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालो, बी बार इज इक्वल्स टू, ये बन गया म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय योर 2 पाई इंटू योर आर। ठीक है, तो क्या म्यू नॉट कांस्टेंट है बेटा? क्या म्यू नॉट कांस्टेंट है? करंट भी कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो बी किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, जैसा बॉयल्स लॉ लिखते हो। तो बॉयल्स लॉ के लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो मैग्नेटिक फील्ड बी आर, दैट विल बी व्हाट बेटा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यानी सेंटर से अगर आप दूर जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? घट रही है। यहाँ पर जब नजदीक थे तो मैक्सिमम थी, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपको डिक्रीज हो रहा है। ये पॉइंट अपने को याद रखना। इज दैट पॉइंट क्लियर फॉर एवरीवन बेटा? Yes sir. Isn't it? यहाँ पर I is because I dash क्यों लिया? ये सभी कोई आइडिया है ना? Because I dash is because of the total current. ये पॉइंट P है ना, ये पॉइंट P पे करंट जो होगा because of the total current होगा। ठीक है ना बेटा? Yes sir. ठीक है, चलो। Is that clear for everyone? Magnetic field at a point outside कितना है? B is inversely proportional to your R. B is inversely proportional to your R part deflection. उसके बाद हम लोग जाते हैं B at the surface. At the surface. At surface मतलब क्या? Small r is equals to capital R. तो क्या मैं इसके अंदर ही डायरेक्टली डाल दूं? मैं डिराइव ना कर रहा, कर दूं क्या? मैं इसमें ही डाल दूं। Mu naught I by 2 pi capital R. है तो इसके अंदर मैं डाल रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा B is equals to म्यू नॉट इंटू सेम करंट I होगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, लेकिन यहाँ पर स्मॉल r की जगह कैपिटल R आ जाएगा। So this is the magnetic field due to your surface. On the surface, magnetic field again mu naught constant, I constant, 2 pi into R is constant. So magnetic field is inversely proportional to R. ये clear है सभी को? Yes sir. Yes sir. See, अब ये important है, यहाँ पर बहुत ज्यादा important आशीष point सर,
हाँ बेटा, आप मेरे को होस्ट बना दीजिए सर, जो भी आवाज कर रहा उन को म्यूट कर देता हूँ। क्या बोला? सॉरी, ठीक है। यस सर। चलो, अब क्या करना है मेरे पास, एट पॉइंट पी इनसाइड, मतलब Inside. कहां पर, पॉइंट पी इज इनसाइड, पॉइंट पी इज इनसाइड, यानी स्मॉलर इज लेसर देन कैपिटल आर, स्मॉलर इज लेसर देन कैपिटल आर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो बेटा, यहां पर जो पहले वाला कंडीशन लिखा था मैंने, यहां पर देखो बेसिकली, ये रोटेट क्यों नहीं हो रहा है यार, यहाँ। तो अब कहां पर आ रहे हैं हम लोग, यहाँ पर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर ले रहा हूं बेटा, यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा मैं डार्क पेन ले लेता हूँ, यहाँ पर ये पॉइंट है, इट डिस्टेंस ऑफ स्मॉल एक्स। तो इसके लिए अभी एम्पियरियन लूप ऐसा बनेगा, तो ये हो गया एम्पियरियन लूप, ये हो गया एम्पियरियन लूप। तो क्या इसमें करंट सेम आई रहेगा कि डिफरेंट रहेगा बेटा, इसके अंदर देखो ये पूरा Different. जो है ना, मास डिफरेंट आ गया ना बेटा, पूरा मास नहीं आया Yes, अभी, sir. थोड़ा मास ही आया, तो करंट इसमें कितना हो जाएगा, आई डैश I आएगा। dash. I dash. Now I know, I hope you know how to calculate the value of I dash. I dash Yes. is nothing but small current divided by total current, is equals to small area divided by total area. तो आप इसको I dash निकालो, I dash is nothing but small current divided by total current is equals to small area divided by total area, ठीक है ना। सो स्मॉल एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू यूर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओरिजिनल एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू यूर आर स्क्वायर, ए पाई चले गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आई डैश कितना आ गया, आई डैश इज इक्वल्स टू योर आई इंटू यूर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई योर आर स्क्वायर। सो दिस इज द करंट इनसाइड एट a distance of your x. Is it clear? Yes sir. Now apply the Yes, Ampere sir. circuit law. Now apply Ampere's circuital law. Now apply Ampere's circuital law. अगर मैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ अप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो लाइन इंटीग्रल ऑफ, ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ योर बी बार इंटू योर, दिस इज नथिंग बट ऑफ योर डीएल इज इक्वल्स टू योर म्यू नॉट इंटू करंट कितना है मेरे पास, आई डैश, तो बी बाहर है, लाइन इंटीग्रल ऑफ योर डीएल, लाइन इंटीग्रल ऑफ डीएल 0 से 2 पाई इंटू एक्स तक जा रहा हूँ, that is equals to your mu naught into current I dash कितना है बेटा, I dash is equals to I into x square divided by your Square capital by. R. So इस DL को भी x ले लो, so DL को भी मैं क्या ले सकता हूँ, x ले लो, या कोई प्रॉब्लम नहीं, DL ही ले लो, प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर हो गया b बार इंटीग्रल ऑफ DL is nothing but DL, ये हो गया 2 pi into your x that is equals to mu naught into I into x square divided by your r square। कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है क्या, देखो यहाँ पर से x चलेगा, a स्क्वायर चलेगा, कुछ और कट रहा, कुछ भी नहीं कट रहा। तो व्हाट इज योर आंसर राइट नाउ फॉर दिस वन बेटा, सो व्हाट इज एन आंसर फॉर दिस वन, मैग्नेटिक फील्ड b बार इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड b बार इनसाइड इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, म्यू नॉट इनटू आई, यहाँ स्क्वायर By चले 2 गया, तो pi. ये पर x है डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू योर r स्क्वायर। R. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज व्हाट, इज जीरो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर x, directly proportional to your x part of relation. Is that clear for everyone? Is that Yes clear for sir. everyone? Now this I can write like a straight line equation beta, b inside is equals to some constant k into x, comparing with the straight line equation, तो ये हो गया y is equals to your m into your x के बराबर हो जाएगा। तो मैं अगर इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, तो ये हो गया इस तरह Straight से, line. सो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, और ये हो गया मेरे पास सम पोजीशन है बेसिकली, मान के चलो ऑफ योर आर, तो मैं सेंटर के पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, कोई बता सकता है, अगर x 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0, अगर x इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा और मैक्सिमम होगा एट द सरफेस, क्योंकि एट द सरफेस x is equals to capital R, so here magnetic field inside is directly proportional to x। फिर सरफेस से जब आप बाहर जा रहे हो बेसिकली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, घटेगा, so that will be in this direction, so magnetic field is inversely proportional to your R. Is that graph clear for everyone? Yes sir. Is that Yes, graph sir. clear for everyone?
आ गया? यस सर। चलो सो फिर से एक बार देख लो, तीन फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर तो मैंने निकाल दिया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्म करंट कैरिंग सिलेंड्रिकल वायर। सरफेस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर होगा, आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर होगा, इनसाइड जीरो नहीं होगा एनीवेयर, ओनली एट द सेंटर जीरो होगा, लेकिन एग्जैक्टली समवेयर इट इज इनसाइड magnetic field is directly proportional to x part of relation. Is that clear for everyone? यस सर। चलो नेक्स्ट वन, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो बेटा। मान के चलो we got a hollow cylindrical, we got an hollow, ये hollow है बेटा। hollow मतलब क्या, थोड़ा मास रहेगा, पूरा जीरो नहीं होगा। so a hollow cylindrical conductor, ये hollow cylindrical conductor of radius मान के चलो स्मॉल ए है एंड कैपिटल बी है, इट कैरीज ए करंट ऑफ योर आई, uniformly spread over its cross section, prove that the magnetic field B for a points inside the body of the conductor, at a distance x or r, at a distance of your r from the axis of conductor, from the axis of your conductor is given by direct shortcut है बेटा इसका है। so B is equals to your म्यू नॉट इंटू टोटल करंट है I इंटू ये हो गया R स्क्वायर माइनस ऑफ योर A स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस इज योर 2 पाई इंटू योर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इंटू योर स्मॉलर। इसको हम लोग को प्रूफ करना। अब क्वेश्चन पढ़ो अच्छी तरह से, यू विल गेट एन आइडिया व्हाट एग्जैक्टली ही इज ट्राइंग टू आस्क फॉर अस बेसिकली। जल्दी से पढ़ो। ये हैलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर है मेरे पास। We are having an hollow cylindrical conductor of radius A and a beak which carries a current I uniformly spread over its cross section. Prove that magnetic field B for a point inside the body of the conductor at a distance of your R इतना होना चाहिए। तो चलो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, इसको हम लोग एनालिसिस करते हैं। सर करंट इनसाइड फ्लो नहीं होता ना सर हॉलो सिलेंडर में? क्यों नहीं होगा बेटा? देखो सिलेंडर ऐसा होता है बेसिकली, हैलो सिलेंडर ऐसा होता है जिसका रेडियस है मेरे पास, दो रेडियस है ना बेटा, एक रेडियस नहीं। एक रेडियस होता तो जीरो होता, तो एक है और यहां से एक और एक है इस तरह से, ठीक है। ओके सर। तो ये हो गया यहां से यहां तक एक पॉइंट और यहां से यहां तक इसका एक और एक पॉइंट, ठीक है। इसके अंदर मास है, मास है मतलब या तो यहां पर ऐसा मास, ठीक है। समझ में? हेलो सिलेंडर मतलब क्या? ये पूरा जीरो नहीं हो रहा, ये पूरा जीरो नहीं हो रहा, एक इनर रेडियस है एक आउटर रेडियस है। ये डायरेक्टली आप लोग फॉर्मूला याद रख सकते हो बेसिकली, अगर आप लोग को बटिफाई करने की ताकत है तो यू कैन रिमेंबर दिस वन। नहीं है मतलब यू नीड टू रिमेंबर द मेथड हाउ वी आर ट्राइंग टू डू इट। दिस प्रूफ इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बेटा, लेकिन फाइनली अपने को रिजल्ट ही याद रखना है फॉर डूइंग द कैलकुलेशन इन द फास्टेस्ट वे। ये हो गया रेडियस, यहाँ पर ये हो गया रेडियस ए और ये हो गया रेडियस बी, ये हो गया रेडियस बी। अब क्वेश्चन देखो बेटा, एक बार क्वेश्चन देखो। ए हैलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस ए, इनर रेडियस ए बी है, कैरिंग ए करंट ऑफ योर आई, यानी अबाउट द एक्सिस, इट इज कैरिंग ए करंट ऑफ योर आई पार्ट ऑफ रिलेशन। अब इसके अंदर आप क्या करो, एक छोटा सा एलिमेंट ले लो,
सो यहाँ से यहाँ तक आप एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, कैसा ले लो, यार मैं क्या कर लेता हूँ, हाँ से इधर कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर पूरा थिकनेस है ना बेटा, इसमें से एक छोटा सा पार्ट कट कर लो। किस में कट कर सकते हो आप लोग, रिंग में कट कर सकते हो, ये पूरा एक पार्ट आप लोग एक थिन रिंग में कट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? यस सर। इजंट इट, जैसा पिज्जा होता है, पूरे चार कोने नहीं किया अभी, पूरा काटा नहीं है, तो ये पूरा गोल वाला पिज्जा है बेसिकली। अब अपने को इस तरह से काटना है, तो ये हो गया इसका छोटा सा मास। तो यानी इसके अंदर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ कितना बेटा, एक्स, एक्स है या आर है कुछ भी बेसिकली, ओके। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है एक्स के पास, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर ये ओरिजिन है वो, तो क्या मैं क्या कर रहा हूँ, वी आर ट्राइंग टू कंसीडर ए सिलेंड्रिकल शेल ऑफ इनर रेडियस कितना है बेटा, इनर रेडियस ये है और आउटर रेडियस कितना है बी, और इसका जो शेल में एलिमेंट है दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर स्मॉल सिलेंड्रिकल शेल, दिस इज योर स्मॉल सिलेंड्रिकल शेल ऑफ रेडियस कितना है बेटा एक्स, एक्स या आर ले लो, प्रॉब्लम में दिया हुआ है आर, सो एक्स विल बी इक्वल टू योर आर पार। तो करंट इसके अंदर कितना हो जाएगा बेटा, मान के चलो इसमें करंट आई डैश है और पूरे में करंट आई है, तो क्या अभी आप करंट निकाल सकते हो, आई डैश बाई योर आई इज इक्वल्स टू योर करंट एलिमेंट दैट इज नथिंग बट डी ए डैश डिवाइडेड बाई योर डी ए, ठीक है ना, ओरिजिनल एरिया पार्ट ऑफ रिलेशन, क्लियर है। तो Yes, sir. Yes, sir. अब ये देखो करंट बताओ, आई डैश डिवाइडेड बाई योर आई इज इक्वल्स टू ए डैश, मतलब इसका एरिया है मेरे पास डी ए डैश, कोई बता सकता है एरिया कैसे लिखोगे, पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी यही होना मेरे को, ये होना बोले तो क्या करोगे, आर माइनस ऑफ ये करोगे, सो दिस वन इज योर आर स्क्वायर माइनस ऑफ योर ए स्क्वायर, तो ये जे देगा मुझे, ये पार्ट होना है मुझे, ये पार्ट होना बोले तो यहाँ से यहाँ तक कितना है आर, ये आर में से अगर मैं ये निकाल दूं, ये निकाल दूं, तो क्या मुझे इतना पार्ट मिलेगा, ठीक है ना बेटा, ये आर है ना बेटा, यहाँ से तो आर है, ये एक्स को निकाल दो आप, ये मान के चलो आर है, ये आर में से अगर ये निकाल दूं तो ये थिकनेस मिलेगा मुझे। सो इसी Yes, तरह sir. से टोटल एरिया, इसका एरिया निकालना, इसका एरिया निकालना है मतलब कितना, पाई इंटू बाहर कितना रेडियस है बी स्क्वायर, इनर रेडियस कितना है ए स्क्वायर, तो ये निकाल दो, ए पाई गेट्स कैंसल, तो आई डैश आ गया यहाँ पर कितना, आई इंटू योर आर स्क्वायर माइनस ऑफ योर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आ गई बात। Yes, sir. अगर ये आ गया तो बाकी का सब आ गया, बस अब करना है क्या है अपने को, एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ लगाना है। सो व्हाट यू डू इज राइट नाउ अप्लाई यूजिंग एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, यूजिंग योर एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। सो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ फॉर्मूला क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ योर बी बार इनटू योर डीएल बार इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू करंट इनसाइड इज हाउ मच आई डैश, तो ये हो गया बी, लिमिट हो गया 0 to 2 pi into r, integral of dl is nothing but l, ये लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लो 2 pi into your r that is equals to mu naught into current i dash, i dash यहाँ पर हो गया मेरे पास कितना बेटा, i into this one is your r square minus a square divided by your b square minus of your a square। कभी कभी इस फॉर्मूले पे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछता है बेटा, तो आप लोग को याद रखना बहुत जरूरी है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना बना अभी, b bar is equals to your mu naught into total current i into r square minus of your a square डिवाइडेड बाय ये हो गया 2 पाई इंटू योर आर इंटू योर ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ऑफ योर ए स्क्वायर, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड फॉर योर हैलो सिलेंडर। क्लियर है सभी को? Yes, sir. क्लियर, इज इट क्लियर? ये हो गया फॉर्मूला अपनी, अगर इनर रेडियस अगर आउटर रेडियस दे दिया देन यू नीड टू यूज दिस फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन बेटा? Yes, sir. Yes, sir. आ गया? Yes, sir. चलो नेक्स्ट, relation between mu naught comma epsilon naught and velocity of light c। सेकेंड ईयर के बच्चों को म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वैल्यू नहीं मालूम है बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं हुआ,
बट लॉन्ग टर्म के बच्चों को तो मालूम है म्यू नॉट इज नोन एज व्हाट बेटा, परमिटिविटी 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू कितना है बेटा 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9। यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। और म्यू नॉट बाई 4 पाई बार मैग्नेटिज्म में आता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर ऑफ -7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। याद है सभी को? यस सर। तो अब क्या करो आप, Yes. म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्या कर सकते हो बेसिकली, दिस वन इज म्यू नॉट बाई योर 4 पाई इंटू ये हो गया 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1। ये 4 पाई चले गया तो कितना आया मेरे को, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट आया। यस। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू योर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट की वैल्यू 10 टू द पावर ऑफ -7 है और इसकी वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 है। तो ये कितना बन जाएगा बेटा, देखो राइट नाउ अगर मैं वेलोसिटी ऑफ लाइट में लिख रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 होल स्क्वायर। तो बचेगा कितना यहाँ पर राइट नाउ 1। तो ये हो गया 1 पार्ट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ये Yes, sir. 9 स्क्वायर को मैंने स्क्वायर में लिख दिया, 3 स्क्वायर आ गया बेसिकली। सर 10 पावर -7 10 टू द पावर ऑफ ये हो गया 10 टू द पावर ऑफ -7, ये है 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 ना। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होनी चाहिए 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 ना। यस सर। तो कितना हुआ, ये कितना हो रहा है देखो, अगर ये नीचे आ गया तो कितना बन रहा है, स्क्वायर है ना 16। यस सर। तो ये बना कितना 1 बाई 3 c स्क्वायर बनेगा। यस सर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट ना बेटा। यस तो यस सर। म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट कितना बना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आता है बेसिकली, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड द वेलोसिटी ऑफ योर लाइट इज इक्वल टू हाउ मच फॉर मी। तो c हो गया मेरे पास 1 बाय अंडर रूट ऑफ योर म्यू नॉट इनटू योर एप्सिलॉन नॉट। ये मैग्नेटिक वेव्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। सो ट्राई टू रिमेंबर द रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट एज ऑफ योर c is equals to 1 by under root of your mu naught into your epsilon naught part of relation। क्लियर है सभी को? Is it clear? यस सर। Yes, sir. So by that we have been completed your Biot-Savart's law and as well as of your what? और क्या कंप्लीट कर? Ampere's Ampere's circuital law. Ampere's circuital Circuital law. ठीक है ना? Yes sir. उसके बाद अब ये हो गया अपने 2 रूल्स से, ये 2 रूल्स सब लोग ने खत्म कर दिए। और उसके बाद अपन जाते हैं थोड़ा एक्सटेंशंस ऑफ दिस टॉपिक के लिए, दैट इज अबाउट योर एम्पियर्स। मैग्नेटिक मोमेंट भी कर लिया ना हम लोग, मैग्नेटिक मोमेंट भी कर लिया ना। व्हाट इज अ मैग्नेटिक मोमेंट बेटा, m is equals to I into your E, याद है? Yes sir, कर लिया sir. So एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में साइन कन्वेंशन में देखो राइट नाउ बेटा, कर्लिंग ऑफ योर राइट हैंड्स में अलोंग द पाथ लाइन इंटीग्रेशन इज टेकन। Okay, so it should be taken inside जा रहे हो, opposite direction of the thumb you should take negative, in the direction of your thumb you take it as of your positive। मान के चलो ऐसा एक एग्जांपल देता हूं मैं, पर एक एग्जांपल देखो साइन कन्वेंशन के लिए। ये क्लोज सरफेस है बेटा, ओके, इसके अंदर करंट है, एक करंट इनसाइड है ऐसा जा रहा, दिस वन इज योर इनटू, इनटू इज रिप्रेजेंटेड बाय योर I1। फिर उसके बाद यहाँ पर डॉट है मेरे पास I2, उसके बाद यहाँ पर फिर से डॉट है, यहाँ पर हो गया I3। डॉट रिप्रेजेंट्स क्या बेटा, व्हाट इज द डॉट इज रिप्रेजेंटिंग फॉर मी, कैन एनीवन टेल मी? Outside. आउटसाइड। ये हो गया I6 मान के चलो, और ये हो गया I7 और ये हो गया I8। तो यहाँ पर 3 आ गया, 4 5 नहीं मैंने नहीं लिया, तो 4 और 5 को मैं कहाँ ले लूँ, बाहर ले लेता हूँ। मान के चलो यहाँ पर इनटू है, दैट इज नथिंग बट I4 है, और यहाँ पर है I5, इस तरह से, ठीक है ना। अब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का रिलेशन लिखो बेसिकली, जल्दी से बताओ कैसे लिखोगे। लाइन इंटीग्रल ऑफ योर b बार इनटू योर dl विल बी इक्वल टू योर हाउ मच। अब ये देखो बेटा, ये क्रॉस रिप्रेजेंट्स इनटू बेटा, करंट इज इनटू, ए डॉट रिप्रेजेंट्स द करंट इज आउट, the current is out part of relation। is that clear? You need to consider only the current which are been enclosed, we don't take the current which is outside। I4 को और I3 को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, so we are considering only the current of your I1। so inside you take it as of your positive, अगर क्रॉस है तो पॉजिटिव ले लो, एंड सॉरी यहाँ पर लिख देता हूँ नीटली, अगर क्रॉस है तो क्या लोगे, पॉजिटिव।
पॉजिटिव डॉट है तो साइन कन्वेंशन क्या लोगे, नेगेटिव। अब नेगेटिव आंसर बताओ क्या होगा इसका आंसर क्या हो जाए, लाइन इंटीग्रल ऑफ योर बी बार into your dl is equals to mu naught into current enclosed। करंट enclosed क्या क्या है मेरे पास, जल्दी से बताओ राइट नाउ। एक तो I1 i1 है, एक तो i1 है, प्लस उसके बाद i2 i3 i4 i5 तो बाहर है, प्लस i6 ये हो गया, फिर इनसाइड जा रहा है i6, प्लस i7 इज आल्सो इनसाइड, देन i8 बाहर जा रहा है तो i2 भी सर बाहर है। साइंस ले रहे सर -7 माइनस, अच्छा सर I1 नेगेटिव लेना ना सर, सॉरी I2 अच्छा नहीं लिखा। take it positive, dot we take it negative, i1 is into you take it as positive, outward you take it यस as सर यस negative। तो ये कितना बन जाएगा, माइनस ऑफ योर, अब यहाँ पर बनेगा i2 माइनस ऑफ योर i3 माइनस ऑफ योर, कितना बनेगा अभी, और कुछ है क्या, i2 ले लेगा, i3 बनेगा, और कुछ भी नहीं है ना, i8 बनेगा, i8। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर So I can say that this formula is applicable, this formula is applicable, this formula is applicable only for symmetric conductors, only for your symmetric conductors। क्लियर है? यस सर चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, motion of charged particle, motion of your charged particle in magnetic field, in your magnetic field। ठीक है, so we are talking about your motion of your charged particle। अगर एक charged particle एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कर रहा है तो क्या क्या कंडीशंस रहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बेटा। फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये मान के चलो एक मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड विच इज यूनिफॉर्म बेटा, लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है ये अपने को कांस्टेंट होनी चाहिए। सो दिस वन इज ऑफ योर बी बार। इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, जिसका मास है m, चार्ज क्यू है। मैंने इसको प्रोजेक्ट किया विद ए वेलोसिटी ऑफ योर v लाइक दिस, विद ए वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड से ये एंगल बना रहा है थीटा। ओके, दिस इज योर b बार। So we are projecting a charge particle making an angle theta with your magnetic field particulation। तो हम लोग को ये पता चला, so force acting on any charge particle moving in a uniform magnetic field is given by the formula F is equals to your B into Q into V into your sin theta। अगर आप इसको बहुत ज्यादा ध्यान से देखें तो क्या वेक्टर्स का फॉर्मूला याद आ रहा है आप लोग को? वेक्टर्स का फॉर्मूला क्या है अपने पास, a बार क्रॉस b बार इज इक्वल्स टू मॉड a मॉड b इनटू sin थीटा। तो इसके अंदर अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, सो इन वेक्टर फॉर्म, इसका प्रूफ नहीं है बेटा, डोंट बॉदर अबाउट द प्रूफ ऑफ दिस वन। तो इसका हो गया वेक्टर्स में रिलेशन एफ बार इज इक्वल्स, इसको ही याद रखना है आप लोग को, वेक्टर्स में ही याद रखना है, एफ बार इज इक्वल्स टू चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट होगा, एंड दिस वन इज द एंगल बिटवीन वी बार क्रॉस ऑफ योर बी बार, v bar cross of your b bar। ये हो गया force acting on any charge particle, and direction is given by what beta, cross product। direction is given by your cross product, direction is given by cross product, given by क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया था स्टार्टिंग में, बहुत सारे एग्जांपल्स लेके, याद है नहीं है मुझे तो आप लोग को पता नहीं है। मान के चलो मेरे पास एक वेलोसिटी वेक्टर है v बार इस तरह से, और यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, एंड यू आर गोइंग मेकिंग एन एंगल राइट नाउ लाइक दिस। तो इसका डायरेक्शन कहाँ पर आएगा, कोई बता सकता है क्या? टेक योर राइट हैंड, curl your fingers to the velocity v bar to b आउटसाइड bar। So thumb will be indicating the direction of this one in the upward direction, this is your v bar। ओके, ये है पॉजिटिव चार्ज के लिए, ये है मास ऑफ योर। फॉर नेगेटिव चार्ज व्हाट यू डू इज, फॉर नेगेटिव चार्ज, ये दिमाग में रख लो बेटा, फॉर नेगेटिव चार्ज, फॉर नेगेटिव चार्ज just reverse the direction, just reverse the direction। ठीक है,
यानी अगर यहाँ पर प्लस चार्ज की जगह माइनस चार्ज होता तो ये वेलोसिटी वेक्टर, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है यहाँ पर, इसका फोर्स का डायरेक्शन है ना बेटा, सॉरी डायरेक्शन, ये सॉरी मैंने वी बार यहाँ क्यों लिखा, तो ये हो गया यहाँ पर रिजल्टेंट इन दोनों का, तो ये हो गया रिजल्टेंट, दैट इज नथिंग बट सी बार, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन जो होगा ना ऊपर हो जाएगा। सो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या करोगे, इस डायरेक्शन को आप रिवर्स कर लो, अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या करोगे, ये हो गया नेगेटिव चार्ज और ये हो गया पार्टिकल ऑफ मास m। अगर ये चार्ज पार्टिकल इस तरह से जा रहा था, ओके, और ये वेलोसिटी वेक्टर है b बार, इन दोनों के बीच में एंगल है, के बीच में एंगल है राइट नाउ फॉर b और थीटा पार्ट ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो अब इसका डायरेक्शन क्या करोगे बेटा, नेगेटिव रहने की वजह से इसको एग्जैक्टली ऑपोजिट कर दो, इसका रिजल्टेंट फोर्स विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, पहले पॉजिटिव मान के करो, उसके बाद नेगेटिव चार्ज है तो जस्ट यू रिवर्स दैट वन, दैट विल गिव मी द डायरेक्शन। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Isn't it? So how do you calculate the direction? By V bar cross of your B bar, and change in kinetic energy for this one will always be equal to 0 क्योंकि velocity will always be constant in this one. So change in kinetic energy, change in kinetic energy will be equal to 0. पता क्यों? हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो इनिशियल माइनस फाइनल दो भी सेम रहेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 0। So I can Zero. say work done by magnetic field will always be 0. Work done by your magnetic field, work done by your magnetic field, work done by your magnetic field will be equal to your how much, 0. Okay, so what a magnetic force can do, magnetic force can only change direction, can only change direction, can only change direction, but not magnitude. Magnetic field is not having magnitude, magnetic field is not having power to change the magnitude. अगर मान के चलो वेलोसिटी v है, v को 2v करना, v/2 करना या 2v 3v करना 4v करना, नो, मैग्नेटिक फील्ड के पास उतनी पावर नहीं रहती, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड कैन चेंज द डायरेक्शन। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड विल नेवर चेंज द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड, बट इट कैन चेंज व्हाट बेटा, डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड कैन चेंज द डायरेक्शन पार्ट ऑफ रिलेशन। क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. Okay, so force on magnetic field अलग है, how do you are calculating beta? So how do you are calculating the force? Force is being calculated by positive charge by, I'm writing this one here, force on positive charge, force on your positive, very very important topic beta, try to concentrate more on this one because you regularly get the questions on this topic. So force on your positive charge, that means F bar is parallel to, F bar is your parallel to your V bar cross of your B bar. In the same way, force on negative charge, force on negative charge, force on your negative charge. So F bar is parallel to, F bar is parallel to minus of your V bar cross B bar. Is that clear for everyone? So this is your Brahmastra you need to remember for the given condition. This is really very 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 important. Clear for everyone? Yes, sir. So this was your story about your charge particle. मैंने अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन ही करा, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है इसके right now. So we can use the different laws also here beta, Fleming's left hand rule, right hand rule, thumb rule, part of relation, that we can do it in the later conditions. That's not a problem for. छोटा सा क्वेश्चन का आंसर बोल दो।
चलो करो। चलो जल्दी से बोलो। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो बोला क्या उसने कि वेलोसिटी दोनों की जो है ना v बार इज इक्वल्स टू i कैप है। सो v बार इज डायरेक्टेड इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना j कैप है। तो अब बोलो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितनी बनेगी? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितनी बनेगी? F बार इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E इंटू वी बार क्रॉस B बार करना है। तो V यहाँ पर है अपने पास, यहाँ पर V है, यहाँ पर B है। तो V और B करे तो कहाँ पर आ रहा बेटा थंब? क्या हुआ? हमें ऑडिबल? बाहर सर। यस सर। बाहर। बाहर मतलब अब इसका आंसर क्या लिखोगे? ये एक्स है वाई है, बाहर तो वाई एक्सेस है, जेड एक्सेस हो जाएगा। तो आंसर क्या लिखोगे मुन्ना? जल्दी फोर्स का डायरेक्शन बताओ। नेगेटिव है ना बेटा? यस सर। बी बार क्रॉस बी बार, थंब बाहर जा रहा है तो इसका ऑपोजिट लेना है। तो माइनस ऑफ योर के कैप आएगा ना। क्रॉस प्रोडक्ट भूल गए? यस सर याद है। आई बार क्रॉस जे बार विल गिव मी व्हाट? के बार। के बार नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए माइनस आ जाएगा। माइनस। देन सर मेरे को याद है सर, मुन्नाम को याद नहीं है। फोर्स ऑन योर प्रोटॉन। नहीं सर, साजिद म्यूट कर दे रहे सबको। फोर्स ऑन योर प्रोटॉन, फोर्स ऑन योर प्रोटॉन F बार इज इक्वल्स टू, F बार इज इक्वल्स टू पॉजिटिव चार्ज रहेगा V बार क्रॉस B बार, तो इसकी डायरेक्शन कितनी आएगी बेटा? I बार क्रॉस J बार है तो इसकी डायरेक्शन आ जाएगी कितना? प्लस के बार। आइडिया है सभी को? यस सर। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कल कर लेंगे और इसका एप्लीकेशन भी हम लोग कल कर लेंगे। आज बायोट सावर्ट्स लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ का थियरी खत्म कर लो आप लोग और मटेरियल के सॉल्ट एग्जांपल्स खत्म कर लो, ठीक है? यस सर। चलो बाय बेटा।